हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023-24 कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता सुप्रीम प्लास्टिक और नई पीढ़ी पत्रिका ने लगातार दूसरे वर्ष भी एंटरप्रेन्योर अवार्ड आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी नजर आए, जिन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। और ईश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। और सबसे पहले मैं सभी हमारे जितने भी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, जितने डिग्निटरीज हमारे साथ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी टू जॉइन अस फॉर द लैंप लाइटिंग। आई वुड रिक्वेस्ट Shri Sarika Baheti, National Advisor, Nai Pidi Foundation. I would request Mr. Shivendra Prakash Dwivedi, Editor, Nai Pidi Sanyukt Vyapar Plastics Today. Shri Vivek Atre, ex-IAS, author, motivational speaker. Shri Raj Karan Tiwari, President, Sanyukt Vyapar Mandal. And Shri Ashish Baheti to please join us. Ashish Baheti ji हमारे बीच में हैं। इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्लास्ट फोकस 2024 की तरफ से हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग प्लीज दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं और दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस प्रोग्राम को विधिवत शुरू करें। जी दोस्तों, हम ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आज का दिन शुरू कर रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ले जाए अंधेरे से उजाले की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर और दुख से सुख की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी डिग्निटरीज से हमारी गुजारिश है ग्रुप पिक्चर के लिए सभी एक साथ आ जाइए और इसके ठीक बाद हम स्पॉन्सर्स का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हमारे जो भी स्पॉन्सर्स और एसोसिएट्स हैं उनका वीडियो आप सब तक पहुंचाने वाले हैं। Together at Blast Focus, we are all set to take Indian plastics industry on the global map and create yet another history with Blast Focus 2024 from 1st to 5th February 2024, where we expect 1,260 plus exhibitors, 180,000 plus visitors, 30 plus participating countries amid 90,000 square meter exhibition area happening at a brand new venue in New Delhi. Blast Focus 2024 is all set to be organized at Dwarka in New Delhi, the India International Convention and Expo Center, popularly known as IICC. Located 10 kilometers away from the Indira Gandhi International Airport with a captive metro station. The venue offers you the benefits of exhibition halls spread across 270,000 square meters. General use area of 640,000 square meters. Centrally located in metro station. Controlled indoor parking for 3,000 cars, 120,000 square meter area for truck parking, majestic sky lobby, grand ballroom with 2,400 seating capacity, green boulevards, and much more. The bedrock of Blast Focus lies in PMMAI, Plastics Machinery Manufacturers Association of India, an apex body of Indian plastic machinery manufacturers. PMMAI has a vision of making the Indian plastics machinery industry a global player and preferred machinery supplier, providing world-class products at competitive prices. PMMAI organizes knowledge-sharing seminars, workshops, study tours, common purchase schemes, to name a few.
On the anvil are exhibitions on a national and global scale to showcase the Indian plastics industry. To achieve a vision of such stature, PMMAI has collaborated with Triune Exhibitors Private Limited, which acts as an interface between government, industry, media and academics. Triune Exhibitors is among few Indian exhibition organizers with a commendable track record of organizing over 54 exhibitions, including Amtex, Plastasia, Print and Pack Tech World Expo and Elasia. At Blast Focus, our vision is to become the leading global supplier and hub of plastics machinery sector with 25% world market share. The idea is to make in India for the world. At Blast Focus 2024, we are elated to be supported by the who's who of the plastics industry. Together, we shall lead new innovations, partnerships and prospects. Blast Focus 2024 will align our goals to our Vision 2047 and resonate with our core vision of innovation to create and make in India. Welcome to the future of plastics technology. सम्मानित साथी, धरना मल्होत्रा जी हैं कहीं विवाद की हमारे मंच संचालिका है। मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी की वंदना करता हूं, क्योंकि आप सिर्फ उद्यमी ही नहीं बल्कि आपके कारण न जाने कितने उद्यम चलते हैं और वो सभी उद्यम अंततः कहीं न कहीं से एक रोजगार सृजन का कारण होते हैं। और रोजगार भी मात्र एक ऐसा चीज है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है और उसके जीवन में उसके जो जीवन के संघर्ष हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने का माध्यम बनता है। इसलिए मैं आप सभी को इसका संचालक मानते हुए फिर से नमन और वंदन करता हूं। साथियों, जैसा हमारे है कि वह जो न्यू जनरेशन है यानी अंकुर है, वहां पे एज नॉर्मली नई पीढ़ी यानी कि जो जन्म लेने वाला बच्चा वहां से लेकर के और 40 साल 45 साल का युवा तो घोषित तौर से नई पीढ़ी होता है। लेकिन मेरा मत है कि नई पीढ़ी वो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे उसकी उम्र 80 साल क्यों ना हो, पर जिसके अंदर कुछ नया करने की क्षमता मौजूद हो। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो 10 साल से लेकर के 100 साल का भी व्यक्ति है, पर वो कुछ नया प्रयोग कर रहा है, कुछ नया रास्ता दे रहा है समाज को, उद्यम को, किसी कार्यक्रम को, किसी अनुसंधान को, किसी भी प्रकार से जो कुछ नया करने का, कुछ अंकुरित करने का, कुछ नया करने का रास्ता दे रहा है, वो सभी नई पीढ़ी है। और इस नई पीढ़ी के अंदर कुछ लोग के प्रयास निश्चित रूप से बहुत अच्छे सफल होते हैं। तो जो सफल हुए हैं वो भी, और जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आगे सफल होंगे। उन सभी को सम्मानित करना सिर्फ अपने सामाजिक कार्य में कहीं पे भी, कहीं वो रुक रहे हैं, कहीं वो ठहर रहे हैं, कहीं वो निराश हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी यात्रा की है, तो उस यात्रा के कारण जब वो सम्मानित होते हैं, दुनिया में इस वक्त इससे बड़ा आयोजन कहीं नहीं चल रहा है। ना ही इतना बड़ा जो हमारी मीडिया है वो स्थान दे रही है, और ना ही पहली बार दुनिया में जनता ने इतने बड़ी कार्यक्रम को इतने दिल से लिया हुआ है। मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दिन भर में घर जाने के बाद टेलीविजन इसीलिए खोलता है कि जरा देख लिया जाए आज अयोध्या में क्या चल रहा है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन मैं शिवेन जी की और पूरी टीम को इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ, उनके इस एक अपने अंदर एक जैसे भाव होता है कि अगर हमने डेट डिसाइड कर दिया है तो हम डेट आगे पोस्टपोन नहीं करेंगे। यह एक दृढ़ता का परिचय है। निश्चित रूप से कि यह एक अवसर है, निश्चित रूप से कि आप इस काल में भी, समय में भी आप अपने गीत को बजाय आगे बढ़ाने के बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आप करते हैं और नई पीढ़ी को उत्साहित और उन्हें आगे बढ़ाने का
विकल्प तलाशते हैं। मैं आदरणीय शिरेन जी को, पूरी टीम को, पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री को, सभी एसोसिएशंस को, सभी साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से ये स्वागत की बात है कि आप सभी लोगों ने तय तिथि पे ही इस सम्मान समारोह का आयोजन किया है। साथियों, जैसा कि हमारे शिवेन जी ने कहा कि इस सारी कार्यक्रम में एक चीज और भी है, वो ये है कि कार्यक्रम स्थल का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से भारत तो हजारों साल से था, लेकिन हजारों सालों के बाद हम गुलामी थे। गुलामी के बाद सब कुछ के बाद में जब में आजादी ली, तो वो आजादी का मतलब क्या, आजादी माने क्या, ये सबसे बड़ा सवाल था कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आजादी के बाद क्या, हम कैसे बढ़ेंगे। वहां के लिए सिर्फ एक विकल्प था जो सबसे शानदार था, वो था संविधान। संविधान मतलब विधान, यानी कि जो नियम है, जो विधिक नियम है वही विधान है, और वही संविधान है। तो उस स्थान पे हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सम्मान जिसको पहली बार आज हुई है, बात मेरी पिछले कई दिनों से हो रही थी। तो 45 के नीचे का जो मापदंड आपने रखा है, तो हम लोग 3 साल पार करते हैं, तो हम एप्लीकेशन लगाते हैं भाई कि आप बताए नीचे में हमको ले आएंगे। क्योंकि विगत 20 वर्षों की जर्नी, जैसे भाई साहब ने चला, भाई साहब ने परिचय दिया कि बहुत सारे समाचार पत्रों, पब्लिकेशन हाउस, ये जर्नी बड़ी छोटी सी है। प्रयागराज में मैं रहने वाला हूँ। सब परिवार उत्थान के लिए, नई पीढ़ी के विकास के लिए आईएएस पद से इस्तीफा देकर के अपना पूरा जीवन नई पीढ़ी के लिए समर्पित कर दिया है। मैं ऐसे भाई विवेक अत्रे जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में भाई विवेक अत्रे जी मौजूद है। भाई विवेक अत्रे जी का बहुत तो वेक्टस का नाम आज सभी लोगों की जुबान में होगा। मैं आमंत्रित करूंगा वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैं मंच पर स्वागत करूंगा सारिका बाहेती जी का, जो नई पीढ़ी की राष्ट्रीय सलाहकार है और पिछले 1 दशक से नई पीढ़ी की शुभचिंतक है और राष्ट्रीय सलाहकार का अपना दायित्व मैं समझता हूँ, मुझे गर्व है कि वो बहुत ही बाखूबी तरीके से निभाती है। और कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कहीं गलतियां होती हैं, बताती। नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित है। पूरी नई पीढ़ी को सारिका बाहेती जी के ऊपर फख्र है। इन्होंने नशा उन्मूलन, युवाओं के नशा उन्मूलन अपने नीरांजलि संस्था के माध्यम से वाटर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, नशा उन्मूलन पे बहुत अच्छा काम कर रही है और उनका सदैव सहयोग और समर्थन नई पीढ़ी के साथ बना हुआ। मैं उनका हम आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, केम छो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आप सबका आज यहाँ नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड्स 23-24 में हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर सो हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर विद अस who have joined us here from the length and breadth of the country। जी हाँ, इंडिया के हर एक पार्ट से, बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से, बहुत सारी अलग अलग जगहों से, पूरे भारत से आप सब लोग हमारे बीच में यहाँ आज नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए हमारे बीच में आए हैं। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती और आप सब की जोरदार तालियों के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। Your host MC Dharna and who has joined us here. You've taken out time from your busy schedule. You've joined us here. You've come from different parts of the country, and this is a beautiful day. And what makes everything so perfect is the presence of all of you. आप सबने आज का ये दिन और भी खास और भी स्पेशल बना दिया है यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर। तो नई पीढ़ी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी डिग्निटरीज, हमारे जितने भी स्पेशल गेस्ट्स हैं, उन सभी का, जितने अवार्डीज हमारे साथ हैं, जो एसोसिएट्स, पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। और अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? चलिए मैं बता देती हूँ, अवार्ड सेरेमनी है तो आज का दिन हम जो आज के अगले 2 घंटे हम
बहुत ही हाई एनर्जी रखने वाले हैं। तो सन्नाटे की और धीमी तालियों की कोई जगह नहीं है, तो हम बहुत एनर्जी से आज एक दूसरे का अवार्ड लेना सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप सब ने कहा कि आप बिल्कुल तैयार हैं आज का दिन शुरू करने के लिए। But trust me, I am equally excited and without any delay, let's start. और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा करके ले आएंगे। तो जहाँ पे भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, इंडस्ट्री ने सभी कोई भी एसोसिएशन हो, इंडस्ट्री हो, सबने इनको सपोर्ट किया। बस हम आप लोगों ने वीडियो देखा, आप सबको आमंत्रित करना चाहेंगे नेक्स्ट वीक में 1 to 5 फरवरी हम लोगों का ये एग्जीबिशन है एंड यू विल फाइंड। आगे लेके जाना चाहते हैं तो प्लास्ट फोकस में हम लोगों ने एक स्टार्टअप पैनल, एडवाइजरी स्टार्टअप पैनल रखा है, जिसमें इंडस्ट्री के हर फील्ड के इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग, जो नया कई लोग हम लोग मिलते हैं जो चाहते हैं इंडस्ट्री शुरू करें बट उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो PFMI has taken an initiative, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो कंसल्ट सीनियर लेवल के जो 3 से 4 दशक तक इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, दे विल बी अवेलेबल थ्रू आउट 5 days। तो अगर आपके कोई सहयोगी या कोई जो इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो दे कैन फिक्स अप द अपॉइंटमेंट्स एंड कम देयर एंड हैव अ knowledge sharing with them. They will keep guiding not only in the exhibition, even later on voluntary basis. Thank you. अगर सुप्रीम इंडस्ट्रीज ना होती, MP तापड़िया साहब ना होते सुप्रीम इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो शायद हम लोग ये कार्यक्रम ना कर रहे होते। उनका पूरा आशीर्वाद। और विजय कुमार तापड़िया जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक थे, वो खुद इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि अकस्मात VK तापड़िया जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं, उनको विदेश जाना पड़ गया, इसलिए वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का अगर वीडियो तैयार है तो एक बार प्ले करने की कृपा करें, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अगर स्पॉन्सर्स का सहयोग नहीं होता, उनकी ताकत नहीं होती, तो हम तो एक संगठक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, एक मंच दे सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और पेशे से पत्रकार हैं, लिख पढ़ सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी ताकत जो प्रदान की, फिलहाल हम इसको आगे देखेंगे। अभी मैं धरना मल्होत्रा जी से आग्रह करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Okay, so किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, एक्स IAS आप रह चुके हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जैसा मैंने कहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शायद ही ऐसा पूरे भारत में या पूरी दुनिया में ऐसा शायद ही कोई जगह होगी जहां लोग इन्हें नहीं जानते हैं। और आज बहुत गर्व का विषय है, बहुत ही हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ श्री विवेक अत्री यहाँ पे मौजूद हैं। श्री विवेक अत्री इज गोइंग टू टॉक अबाउट keys to successful startup business। यहाँ पे सभी लोग बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, which makes his talk really relevant. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Vivek Atri. Let's welcome him to the huge round of applause. Thank you very much. Thank you so much. With your permission, I'll speak from here. सब लोग ठीक ठाक हैं? All well? Yes. First of all, I must thank Shivendra Prakash Dwivedi ji, and even before that, I must thank Sarika ji and Ashish ji because they are the ones जिन्होंने मुझे connect कराया। अभी मैं रवि अग्रवाल जी के साथ बात कर रहा था, तो आप में से कई लोग जो हैं वो जानते भी होंगे और मिलेंगे दोबारा, लेकिन अभी जो टॉपिक दिया गया उस पे आ जाते हैं, क्योंकि आप इंतजार भी कर रहे हैं। और ये जो मोटिवेशन है ये हमारे हॉल में तो है, लेकिन हाल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि मोटिवेशन ठप हो जाता है। कोरोना, कोविड, हम भूल जाते हैं कितनी ज्यादा मायूसी उस टाइम आई। मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस क्रॉप्ड अप, थिंग्स बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आगे फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा था। अब क्योंकि हम उसके बाहर है तो भूल गए। तो हमें एज अ वर्ल्ड, एज अ ग्लोब, एज अ पॉपुलेशन, एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्लोबल पॉपुलस,
हमें ये सोचना है कि हमारी लर्निंग्स क्या है और आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं स्टार्टअप की बात जरूर करूंगा, लेकिन पहले क्योंकि यंग लोग बहुत हैं, यंग तो सारे ही हैं, कुछ थोड़े यंग हैं, कुछ ज्यादा यंग हैं, कुछ नॉट सो यंग है, लेकिन फिर भी यंग उसमें आता है। तो उनके लिए ये कि मैं 7 C's आपको एक बताऊंगा, ठीक है? 7 C's चलेंगे? वो और लोग भी C's बताते होते हैं, मैं भी बताता हूँ। तो 7 C's में से आपको जो पसंद आए वो अपना लीजिएगा, एंड दे आर द सीक्रेट्स टू सक्सेस। मेरी बुक का नाम है फाइंडिंग सक्सेस विद इन। वैसे मुझे ब्रैग नहीं करना चाहिए, 4 किताबें हैं, उनमें से पढ़ने वाली ये है असली, फाइंडिंग सक्सेस विद इन। बाकी कोई रोम कॉम है, कोई शॉम कॉम है, कुछ छोड़ दीजिए। और एक और है, वैसे इट्स स्टिल अ वंडरफुल लाइफ। सक्सेस हमें मिलता कहाँ है? सड़क पे, हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, घर में, ऑफिस में? नहीं। We find success within. Problems कहाँ हैं? मन में। Problems भी मन में। Two people in the same situation are not thinking in the same way. जब मुश्किल आती है सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, आप में से बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या स्टार्टअप है, या कंपनी है, इंडस्ट्री है, some of you are very experienced. I speak to entrepreneurial students etc. 3 चीजें हमें चाहिए थी, हमें 3 चीजें चाहिए थी जब हमने शुरू किया है, शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी चीज शुरू करने के लिए 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 हिम्मत, करेज, आइडिया, ये सब नंबर 1 में आ गए। एक जील, एक जोश, ये कुछ करना है, फैसला तो लेना पड़ेगा ना। फिर रूटीन में लाइफ तो चल ही रही है, कोई नई चीज शुरू करने के लिए वी हैव टू, कहते हैं अंग्रेजी में शशि थरूर जी बोलते हैं टेक द प्लंज, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। मैं उनका नाम इसलिए लेता हूं कि वो अंग्रेजी बोलते हैं अच्छी। टेक द प्लंज, और डुबकी तो मारनी पड़ेगी। नंबर 2 इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं उसको रिस्क है। लाइफ कोई प्रेडिक्टेबल है किसी की? आपको पता था कि आज आप यहाँ बैठे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? 2 साल पहले पता था आपको? नहीं। कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल है? नहीं। We have no idea what life is going to entail in future. But are we supposed to be scared? No. लाइफ का अनप्रेडिक्टेबल होना ही उसका एक चार्म है। उसमें अप्स एंड डाउन्स इनहेरेंट है, निहित है, उसका पार्ट है, उसका भाग है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अप्स एंड डाउन्स को झेलने की ताकत हमारे कंधों में होनी चाहिए। तो द प्रेयर टू द लॉर्ड इज डोंट रिड्यूस माय बर्डन्स, स्ट्रेंथन माय शोल्डर्स। मुझे इतना ताकतवर बनाइए कि जो भी मेरे सामने आता है चैलेंज, उसको मैं कॉन्कर कर सकूं, परास्त कर सकूं, और आप सबने किया है। Without that himmat, that courage, that risk-taking ability, you couldn't have done it. Number 3, we need resources. Practical बात ये है कि resources के बिना कुछ नहीं होता। जो young लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। पेरेंट्स से लड़ झगड़ के जो सक्सेसफुल होता है, वो असल में सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक रिग्रेट, एक प्रॉब्लम रहती है। पेरेंट्स से लड़ झगड़ के कोई भी फैसला करना। अब हम लोगों ने मतलब मैंने लव मैरिज करी कितने साल पहले, ये नहीं बताऊंगा कितने साल पहले। तो पेरेंट्स से थोड़ा बहुत तो लड़ना झगड़ना पड़ा। एक कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी, उस टाइम ये चीजें भी होती थी, जबकि हम दोनों इंजीनियर हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत समझा बुझा के आगे बढ़ना पड़ा। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस, एंड पेरेंट्स डोंट हैव पेशेंस विद द किड्स। पेरेंट्स को तो मैच्योरली बात करनी चाहिए अपने बच्चों से, उनकी बात समझनी चाहिए। हम में से काफी लोग पेरेंट्स हैं, कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। पॉइंट क्या है कि younger and older generations have to talk to each other. If a youngster wants to convince his or her parents that he wants to start up something, he or she has to sit patiently with the mother and father. And the mother and father should not snap. Snap क्या होता है? टैश में आके, गुस्से में आके कुछ बोल दिया।
आराम से दरवाजा बंद कर दिया, मुझे नहीं खाना है। बोले दिस इज फैमिली, बट इट्स नॉट राइट। वी नीड टू कन्विंस देम पेशेंट, ओनली देन मैटर्स विल इंप्रूव। आई हैव अ कजन, तो मेरे चाचा जी का फोन आया, मैं मेनी कजन, बोले एक कजन की बात बता रहा हूँ। चाचा का फोन आया, विवेक इसको समझाओ मनु को, ये अपनी बढ़िया वाली जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना चाहता है, 15 साल से अच्छी सैलरी ले रहा है, जीएम बनने वाला है, और अपना वो छोड़ के और स्टार्टअप करेगा, और वो भी ऐसा कोई आइडिया नहीं चाचा को कि क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा चाचा जी इसको 2 साल दे, कहते तुम भी वही बात कर रहे हो। So I had to struggle to explain to my uncle चाचा कि ये इसको इसके दिल की बात है, मन की बात है, पैशन। Without passion, we are listless, we are dull, we are routinized, we are boring. Many people have to live zabardasti zindagi, but there are so many things which can be improved if we are able to convince others. पोटेंशियली हम सारे ही रोल मॉडल हैं, मतलब हम सब में वो काबिलियत है। यंगस्टर्स में से और सब में से आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर द यंगेस्ट पर्सन इन द रूम। हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द रूम? थिंक यू आर द यंगेस्ट पर्सन इन द रूम। वन ओवर देयर, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। यंग एट हार्ट, यंग एट जिसकी ग्रे दाढ़ी होगी वो यंग एट हार्ट है, ठीक है, Not but young. okay. What I am trying to say to you is that we have to only change our own. कहाँ होते हैं? अमेरिका में, अयोध्या में, कहाँ होते हैं? आप होते ही नहीं, आप होते ही नहीं, इस फॉर्म में नहीं होते। फिर आप एंजल होते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं। हम इंसान हैं तो हमें कुछ इंप्रूव करना है, इसलिए हम इंसान बने। और फिर अगर आपकी पिज्जा की ललक रह गई या कचौरी की ललक रह गई और आप चले गए यहां से, तो दोबारा भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपने कचौरियां खाई नहीं उतनी, और आपको ऊपर जाके कचौरी याद आएगी, बोलो चल पैदा हो जा दोबारा से कचौरी के लिए। कर्म या ललक या डिजायर्स बाकी, एनीवे वो स्पिरिचुअल बातें छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। तो हम अपने आप पे काम कर सकते हैं। 7 C's अब मैं बता दूं। नंबर 1 इज करेज। करेज मीन्स फियरलेसनेस। फियरलेस कोई नहीं है, डर थोड़ा बहुत सभी में होता है, डर थोड़ा बहुत इवन रेसिंग ड्राइवर में, राइट? इवन द मैन हु इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप वो भी डरता है, लेकिन लेस फियर। वी कांट बी फियरलेस, वी कैन हैव लेस फियर, वी इंप्रूव आवर करेज। मैं गवर्नमेंट में था तो आईटी में था तो बोलता था कि पेपरलेस कर देते हैं गवर्नमेंट को। पेपरलेस नहीं तो लेस पेपर तो कर सकते हैं, which we have done, which government has done. Next is character. अब हम दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ, not far from here. Willingdon Hospital now known as Ram Manohar Lohia. Born there. Character is something we have to work on. Not only Delhi, the whole world. रेड लाइट पे हम तब रुकते हैं पुलिस वाला खड़ा। कोई कहावत है, कहानी है कि वो एक बंदा गया, वो रेड लाइट क्रॉस करके निकला तो पुलिस वाला पेड़ के पीछे था, वो बाहर आके बोलता है रुको रुको, रेड लाइट नहीं दिखी तुम्हें? कहता है सर रेड लाइट तो दिखी पर आप नहीं दिखे, आप नहीं दिखे। कैरेक्टर, when nobody is watching what are we doing? और गलती किससे होती है? इंसान से, because nobody is perfect. So we improve. We try and improve our mistakes in character. We will make mistakes because we are imperfect, but we improve. Number 3 is creative thinking. 7 C's की बात कर रहे हैं. Third is creativity. Are we all creative? Yes. Anyone who's a singer इस पूरे हॉल में हो नहीं सकता यार. तब तो मैं ही सुना देता. अच्छा ठीक है, very good. Art, painting, raise your hands. Very good. Writing, poetry, कविता वगैरह, पोएट्री वगैरह, ठीक है, मान लिया। स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट, ये खड़े, ठीक है, गुड। पॉइंट इज दिस कि कोई ना कोई क्रिएटिविटी हमें लाइफ में लानी है और अपने करियर में भी लानी है। मतलब कि माय वर्क शुड आल्सो बी इनोवेटिव, क्रिएटिव। आई शुड ब्रेक द मोल्ड, पाथ ब्रेकिंग।
path breaking. 4 is compassion. अब compassion का ये मतलब तो नहीं कि passion कम हो गया. Compassion का मतलब दूसरों के बारे में सोचना, empathy, thinking of others, putting yourself in others' shoes. सिर्फ मैं अपने बारे में सोच के कितनी दूर जाऊंगा? मेरी कंपनी, मेरी इंडस्ट्री, मेरी फैक्ट्री, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा whatever, मेरा फोन. सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे और सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कुछ संदेश? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। एंटरप्रेन्योर्स को हिम्मत रखनी चाहिए और द्विवेदी जी ने जो ये पहल की है नई पीढ़ी की, ये बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, नई पीढ़ी फाउंडेशन, नई पीढ़ी पत्रिका का संपादक हूँ। प्लास्टिक टुडे और संयुक्त व्यापार मैगजीन भी हमारी निकलती है। आज नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर फोरम का अवार्ड फंक्शन था। इस अवार्ड फंक्शन में पूरे देश के एंटरप्रेन्योर्स जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं वो आमंत्रित किए गए थे, उन्हें सम्मानित किया गया। और पूरे देश से, पांडिचेरी से लेकर के, कोयम्बटूर से लेकर के, कोलकाता से लेकर के पूरे देश के अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, बेहतरीन जो काम कर रहे हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बुलाए गए थे और उनको सम्मानित किया गया। हम खास करके इस बात के लिए कि नई पीढ़ी के उद्यमियों का उत्साह बढ़े और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएँ, इसी के लिए अवार्ड फंक्शन। एक सवाल लीजिए कि जिस तरीके से आज जितने भी तमाम लोगों को अवार्ड्स मिले, ज़्यादातर यंगस्टर्स में थे। जी। उनके लिए और जो आपसे जुड़ना चाहिए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि सभी लोग, सभी नई जनरेशन का एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।